Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today is lecture number 9, class 7, presented by Ms. Rakhshi Ramzan, SS Mathematics in Divisional Public School and College, Sahiwal. Today is our topic of the day is universal set and complement of a set related to exercise number 1.3, question number 2 and 3. Now students, do you know about universal set and complement of set? First we revise difference of sets. Difference of two sets. What is meaning by this one? First we revise the difference of two sets. Here we have two sets A and B, and we have to take the difference of A and B. Then what is meaning by this? Consider that A and B are two sets. Then A difference B is a set of all those elements of set A which are not the elements of set B. It is written as A difference B or A difference B. सबसे पहले बच्चों अब हम ये डिस्कस करते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होता क्या है. देखिए, अगर हमें दो सेट्स दे दिए जाएं A और B और कहा जाए कि आप इनका डिफरेंस निकालें, तो आप कैसे मालूम करोगे? इसमें वो सेट होगा जिसमें तमाम एलिमेंट्स होंगे सेट A के, लेकिन वो एलिमेंट्स जो B में प्रेजेंट है वो इंक्लूड नहीं होंगे. इट्स मीन कि A डिफरेंस B is a set of all those elements of set A which are not the elements of set B. It is written as A difference B और A difference B. हम इसे कैसे अब से क्लियर करते हैं? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. हमारे पास एक सेट है A जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 6 और B एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, अब हमने मालूम क्या करना है? A डिफरेंस B. अब देखें, रिपीट करते हैं. If A is a set which consists of elements 1, 3, 6 and B is a set which consists of elements 1, 2, 3, 4, 5, we have to find A difference B. अब सबसे पहले हम क्या करते हैं A difference B मालूम करने के लिए? First we write A set, then difference we write B set. अब हम A के वो एलिमेंट्स जो B में प्रेजेंट है उन्हें हम कंसीडर नहीं करेंगे. Now we will see. चले देखते हैं. 1 is present in A set, 1 is present in B set. So we will not consider this number. 3 is present in A set. 3 is also present in B set. We will not consider this number because we will not consider the elements of A which are not the element of set B. So we will get what is 6. About 6. बच्चों 6 के बारे में क्या ख्याल है? 6 A में मौजूद है लेकिन B में नहीं है. It's mean we will take 6. 6 is an elements which are present in A but not in B. अब दोबारा रिपीट करते हैं कि हमारे पास दो सेट्स दिए गए हैं A और B and then we have to take A difference B is the set of all those elements of set A which are not the elements of set B. It is written as A difference B or A difference B. For example, A is a set which consists of elements 1, 3, 6 and B is a set which consists of elements 1, 2, 3, 4, 5. We have to find out the A difference B. First we write A set, then my difference, and then we write B set. Now we will see which elements are present in both the set A and B. 1 and 3 are the elements which are present in A and present in B. So we see here 6 is an element which are present in A but not in B. So our resultant set is 6. Understand? Now we will see B difference A. Similarly, if A and B are two sets, then B difference A is a set of all those elements of set B which are not the elements of set A, and it is written as B difference A. For example, if A is a set which consists of elements 1, 3, 6 and B is a set which consists of elements 1, 2, 3, 4, 5, then find A B difference A. अब हम इसे देखते हैं बच्चों. हमारे पास दो सेट दिए गए हैं A और B, दो सेट्स हैं और हमें कहा गया है कि आप मालूम करें B डिफरेंस A. और B डिफरेंस A क्या होगा? ये वो सेट होंगे जिसके अंदर ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ B होंगे जो कि विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट A, जो कि एलिमेंट ऑफ सेट A नहीं होंगे. इसके लिए हम देखते हैं हमारे पास A सेट है 1, 3, 6 जिसके एलिमेंट्स हैं
और बी वो सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। हमने मालूम करना है बी डिफरेंस ए। सबसे पहले बी डिफरेंस ए मालूम करने के लिए हम बी सेट लिखेंगे, देन डिफरेंस, फिर हम ए सेट लिखेंगे। अब हम देख सकते हैं कि बी के वो एलिमेंट कौन से हैं जो कि ए में प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों 1 इज प्रेजेंट इन ए, 2 is not present in A, 3 is present in A. So we will write here 2, 4, 5. These are those elements which are present in B but not in A. आप देख सकते हो कि B में 2, 4 and 5 ये वो एलिमेंट्स हैं जो B में प्रेजेंट हैं लेकिन वो A में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमारे पास इसका रिजल्टेंट सर क्या आ जाएगा 2, 4 and 5, B डिफरेंस A। अब हम आगे चलते हैं। Today our topic is universal set. What is meaning by universal set? A set which contains all possible elements of the set under consideration is called the universal set. To represent such a set, we use the symbol U and is read as universal set. For example, we have considered here universal set of counting numbers, and universal set of counting numbers means a set contain all possible numbers that we can use for counting. Here we have number which are counting numbers 1 2 3 4 so on, and when we take the universal set we will write it as a universal set is equal to the set consists of elements 1 2 3 and 4 so on. These are the universal set of counting numbers. बच्चों अब हम इसे देखते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होता है। इसमें हम ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स लेते हैं जो अंडर कंसिडरेशन होते हैं और वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में, और उसे हम यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल क्या यूज करते हैं हम यू, और वो भी कैपिटल यू, और इसे हम रीड कैसे करते हैं यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट अब हमने यहाँ पर कंसीडर कौन से एलिमेंट्स किए हैं, काउंटिंग नंबर्स, और काउंटिंग नंबर आप जानते हो यूनिवर्सल सेट विच इज इक्वल टू सेट कंसिस्ट ऑफ द काउंटिंग नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ सेट वो क्या होता है। फर्ज करें हमारे पास एक सेट है बी और यूनिवर्सल सेट है यू, तो हमें कहा गया कि कंप्लीमेंट मालूम करें, तो हम क्या करेंगे बी द डिफरेंस सेट यू डिफरेंस बी, और यू डिफरेंस बी इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी डिनोट हम किससे करते हैं बी कंप्लीमेंट, और बी कंप्लीमेंट इज रीड एज बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए सबसे पहले कंसीडर अ सेट बी whose universal set is u, then the difference set u difference b or u difference b is called the complement of set b which is represented by b complement or denoted by b complement or b complement and is read as b complement. B complement is equal to u difference b. It's mean we have to take a complement of any number with the difference of uniform universal set. अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक्सरसाइज नंबर 1.3 पे चलते हैं। वहाँ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इफ U is a set which consists of elements 1 2 3 and so on 10 and A is a set which consists of elements 1 2 3 4 5 and B is a set which consists of elements 1 3 5 7 9 and C is a set which consists of elements 2 4 6 8 and 10 and D is a set which consists of elements 3 4 5 6 7, then we have to find out A complement. Students, we have to find out A complement. A complement mean, what is mean by A complement? You will take the difference of set A from universal set. See here, we will take the difference of set A from universal set. It's mean we will take U difference A. अब हम इसमें set लिखते हैं, universal set which is consist of counting number up to 10 1 2 3 so on 10 difference 1 2 3 4 5। अब बच्चों इसमें से हमने क्या करना है कि ए के एलिमेंट्स जो कि यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं उन्हें कंसीडर नहीं करना, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के उसे हम रिजल्टेंट सेट के तौर पर यूज करेंगे। जैसे देखें 6 7 8 9 10, दीज आर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। आप देख सकते हो ए में मौजूद नहीं है एलिमेंट्स 6 7 8 9 10, और हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब अगेन रिपीट कर लेते हैं, जैसे यूनिवर्सल सेट में से हमने जब ए का डिफरेंस लेना है तो वो हमारे पास बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट। उसको मालूम करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट और उसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 एंड सो 10, एंड डिफरेंस लेंगे हम 1 2 3 4 5। ये कौन से एलिमेंट्स हैं, जो ए के एलिमेंट्स हैं। अब हम देखेंगे ए के वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 ये वो एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल सेट में ऑलरेडी
प्रेजेंट है, तो हम इन एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे, और जो बाकी एलिमेंट्स रह जाएंगे 6, 7, 8, 9, 10 हम उन्हें कंसीडर करेंगे और उन्हें एक रिजल्टेंट सेट बना लेंगे। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हुआ। आगे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट है, जिसमें कहा गया है कि आपको सी कम्प्लीमेंट मालूम करें। सी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? यू डिफरेंस सी। यू डिफरेंस सी का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट हम लिखेंगे पहले, फिर डिफरेंस लेंगे और फिर हम सी सेट लिखेंगे। सी सेट हमारे पास क्या था? 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब हम इसमें से यूनिवर्सल सेट में से हम सी सेट के कम्प्लीमेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट में 2 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है और 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है। तो इन एलिमेंट्स को हम यूनिवर्सल सेट में से कंसीडर नहीं करेंगे। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि सेट सी में प्रेजेंट नहीं है, तो और वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए हम इसे सी कम्प्लीमेंट के अंदर सी कम्प्लीमेंट के अंदर लिखेंगे और वो आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9। अब आपको ये काफी क्लियर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि यू एक यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड सो ऑन आई, एंड एक्स इज ए सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए सी ई जी और आई, वाई इज ए सेट है जो कि इसके एलिमेंट्स हैं ए ई एंड आई, एंड जेड एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए जी एच, एंड देन वी हैव टू फाइंड वाई कम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यूनिवर्सल सेट है विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स A, B, C and I, and X is a set which consists of elements A, C, E, G, I, and Y is a set which consists of elements A, E, I, and Z is a set which consists of elements A, G, H, and then we have to find Y complement. What is meaning by Y complement? Y complement means you have to take the difference of Y from U. U mean universal set. First we write universal set, then difference, and then Y set. What is universal set? A, B, C, and so on I. हमने क्या लिखा? ए बी सी एंड सो ऑन आई। डिफरेंस लिया। वाई सेट क्या है हमारे पास है? जो है ए ई एंड आई, वो हमने लिखा। फिर दोनों का डिफरेंस लिया। जब दोनों का डिफरेंस लिया तो उसमें से हमारे पास ए ई आई वो एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं। हम इन एलिमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे और जो बाकी एलिमेंट हमारे पास रह जाएंगे वो है बी सी डी एफ जी एंड एच। ये हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है बट लेकिन वाई सेट में मौजूद नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें एक्सरसाइज 1.3 में पार्ट 4 है यू कम्प्लीमेंट। यू कम्प्लीमेंट क्या होता है? यू कम्प्लीमेंट मीन यू डिफरेंस यू मीन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस यूनिवर्सल सेट। अब हम इनके सेट लिखते हैं। सेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या था? ए बी सी एंड सो ऑन आई एंड माइनस ए बी सी एंड सो ऑन आई। अब देखिए सबसे पहले बच्चों आपने यहाँ देखा ये तो दोनों ही एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं यूनिवर्सल सेट में, तो फिर हम क्या करते हैं? ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है और सी भी, और आई तक मौजूद है एलिमेंट्स, इधर भी ए बी सी और सो ऑन आई तक एलिमेंट्स सारे मौजूद हैं। इट्स मीन कि यूनिवर्सल सेट में एक ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि इन दोनों सेट्स में एक दूसरे से डिफरेंट हो। इट्स मीन फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, सेकंड यूनिवर्सल सेट में यानी यूनिवर्सल सेट में जो कि सेम मतलब डिफरेंट ना हो, तो हम इसको क्या करेंगे कि हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है जो कि यूनिवर्सल सेट का जो दूसरे यूनिवर्सल सेट यानी यू ही में यानी एक ही यूनिवर्सल सेट है उसी में से उसी का अपने आप से जब हम डिफरेंस लेते हैं तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट देता है। इट्स मीन कि वहाँ पर हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। इट्स मीन कि जब हम यूनिवर्सल सेट का यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट सेट एम्प्टी सेट बनता है। अब आपको ये क्लियर हुआ कि जब हम यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस लेंगे और उसमें से हमारे पास जो रिजल्टेंट सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। आपकी होम असाइनमेंट ये है कि आपने एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 उसके पार्ट नंबर 2 और 4 को सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 और 3 को सॉल्व करना है। होप सो कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।